Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to talk about the last topic of organisms and population is the population interaction. The topic is population interaction. In this video lecture I will discuss about the concepts of population interaction as well as the different types of population interaction held in a population. As you all know, a population may be defined as the individuals may be same species belong to the specific geographical area. When the different kinds of individuals share the similar kinds of food property, there will be interaction. They may benefit to each others or they may harm to each others. On this basis, there are so many types of interaction can be seen. Later, one by one, I will describe them in this video lecture. This is very important video, and in this video, I will cover all the topic that are in our syllabus and that may ask in the competitive examination as well as the board examination. Here, my target is to cover the all related topic from the population interaction. So be with the video lecture till the ends and make the notes along with the video lecture. I will provide you the PDF related to the video lectures and their descriptions. Important heading as well as the definition, examples and the explanation of the interaction will available in this video lecture. So be with the video lecture and for some time, for certain time of period during the video lecture, you should have a pen paper in order to note down the important conclusion that made for the particular video lectures, particular concepts. Here a lot of interaction can be seen in the living organisms. They may be beneficial to each others or they may be harmful for each others or they may be belong to the similar kinds of species or different kinds of species. One by one I will introduce you whatever the important interaction in them. Interaction means the correlation among the different kinds of individuals belong to the same population or the different population, but they are actually living individuals. So one by one I will describe about them and I hope you can prepare your own note and the explanation will be as according to your language, as according to the very easy language that you can understand very easily and write the important concepts with full explanation. So let back over the concepts of population interaction and define and explain each of them. Now the population interaction among the population. Actually, as you all know, several individuals form a population. Individual A, individual B और मे बी द इंडिविजुअल सी. कभी न कभी ए की ज़रूरत सी से पड़ सकती है या सी की ज़रूरत ए से पड़ सकती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझते हैं फिर भी बेवजह झगड़ा करने के लिए एक आमने सामने आ सकते हैं. तो जिस वजह से एक दूसरे से चाहे स्ट्रगल हो चाहे एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो, ये कोरिलेशन इसको बोला जाता है कोरिलेशन. ठीक है, इसको बोला जाता है कोरिलेशन और इसी कोरिलेशन को इंटरेक्शन बोला जाता है. ठीक है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो आपके यहाँ पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होता है. ठीक है, तो पेरेंट टीचर में क्या होता है, पेरेंट्स होता है और टीचर होता है. ये एक दूसरे की कभी क्या होता है कि या तो आपकी वहाँ पे पॉजिटिव बातें चलती हैं या तो आपकी वहाँ से नेगेटिव बातें चलती हैं. तो ये इंटरेक्शन या तो पॉजिटिव वे में जाता है या फिर नेगेटिव वे में जाता है. इस तरह से इंटरेक्शन कई टाइप का हो सकता है. तो आई होप आप सिंपली मीनिंग समझें. इंटरेक्शन मीन्स कोरिलेशन अमॉन्ग द different individuals belong to a population from the similar kinds of geographical area. Similar kinds of geographical area, similar kinds of area, इससे क्या मतलब है भाई, अगर कोई पॉपुलेशन इंडिया में, सपोज दैट ये इंडिया में दो भैंस की पॉपुलेशन, एक ए है बी है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट है, तो ऐसा कतई नहीं होगा कि अमेरिका में भी कोई सी और डी है तो बी का सी से इंटरेक्शन होगा या बी का या ए का सी से होगा या ए का डी से होगा या बी का डी से. ऐसा ये इंटरेक्शन नहीं पॉसिबल है. तो पॉसिबल क्या है भाई, पॉसिबल वही है जो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से आते हो. अगर दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से आएंगे तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा. तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की पहली सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वो सेम जियोग्राफिकल एरिया से आते हो. अगर वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से आएंगे तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन नहीं होगा. अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो आपके लिए मैंने चूज करके ये डेफिनेशन टाइप किया है और इसी डेफिनेशन को आप लिखेंगे भी कॉपी में. इसका PDF आपको मिल जाएगा. कोरिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स belong to same or different species in a population
called as population interaction. Means correlation between two organisms. टू ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो कोरिलेशन होता है, ठीक है, वो या तो सेम स्पीसीज का हो या फिर डिफरेंट यानी अलग अलग स्पीसीज का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन. अगर वो सेम स्पीसीज का हो, जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल, एक जो है बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें कभी बफेलो या लायन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, या फिर कभी कभी ये होता है कि तुम देखते होगे कि एल्गी और फंगी लाइकेन बनाते हैं, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को ये बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या पहुँचा रहे हैं, बेनिफिट. एल्गी फंगी एक दूसरे को क्या पहुँचा रहे हैं, बेनिफिट, और ये एक दूसरे को नुकसान पे तुले हुए हैं, लेकिन ये भी अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं. ये बफेलो है और ये लायन है. तो अगर वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, अगर इंटरेक्शन उनका सेम, ये पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे मान लो कि कोई एक लायन है किसी पार्टिकुलर एरिया में डोमिनेट कर रहा है, दूसरा लायन आ गया, ठीक है, उसी एरिया में, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोरिलेट होंगे, इंटरेक्ट होंगे और ये एक दूसरे से फाइट करेंगे. तो ये फाइटिंग ये मत समझो कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में ही होता है, नहीं, सेम स्पीसीज के बीच में हो सकता है. भैंस का भैंस से, ठीक है, बफेलो काऊ का काऊ से, लायन का लायन से, ये इंटरेक्शन हो सकता है. ये दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं. ये भी हो सकता है कि एक लायन दूसरे लायन की हेल्प कर दे. तो ये इस तरह का पॉपुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे को हेल्प कर सकता है, एक दूसरे से लड़ाई कर सकता है. मतलब दो लिविंग बीइंग अगर आमने सामने हो तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन, ठीक है. तो वो आमने सामने कब होंगे, जब सेम स्पीसीज सेम जियोग्राफिकल एरिया में होंगे. तो यहाँ पे पॉपुलेशन में भी इंटर स्पेसिफिक, पॉपुलेशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन मीन्स when the population interaction occurs between the different species, there will be the inter-specific population. Suppose that A interact with B, A means buffalo, B means lion, कुछ भी मान सकते हो. When the population interaction occurs between the two similar kinds of species, for example A interact with A और B interact with B. I hope इसको आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, लिख लेंगे. इसी डिफिनीशन का आप यूज करेंगे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन में. इसको पूरा हेडिंग डालेंगे, इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन. इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कोरिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज. इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कोरिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन. आई होप डिफिनीशन इट में भी करके ये दोनों लिखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 दोनों को कॉपी में लिख डालेंगे. आई होप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है. इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख करके कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको लिखना ही लिखना है दोनों का, इंटर स्पेसिफिक का भी लिखना है, इंट्रा स्पेसिफिक का भी लिखना है. चलो आते हैं नेक्स्ट. हाउ इंटरेक्शन अमॉन्ग पॉपुलेशन बेनिफिशियल टू ईच अदर्स और होगा ये OR कर देंगे, और हार्मफुल ऑन दिस बेसिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में भी. तो देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, दो ऑर्गेनिजम्स है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं या दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस बेस पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन कई टाइप का हो सकता है. आगे आपका लिखा हुआ है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, अभी बता दे रहा हूँ. पहले आप ये समझे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक दूसरे को, इंडिविजुअल पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुँचा सकते हैं. इस बेस पे ऑर्गेनिजम्स जो है कई तरह से इंटरेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में. तो आप ऐसे लिख लेंगे कॉपी में, हाउ इंटरेक्शन अमॉन्ग पॉपुलेशन बेनिफिशियल टू ईच अदर्स, और ये और होगा हार्मफुल ऑन दिस बेसिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में भी क्या लिखेंगे, ये बहुत सारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है. म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, बहुत सारा का पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, ठीक है. अब आते हैं म्यूचुअलिज्म. क्या होता है भाई, when the two living organisms live in a population in such a manner that both benefited to each others or both benefited from each others. इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी एक पॉपुलेशन में दो ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट ए रह रहा हो और बी रह रहा हो, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म. यहाँ पे हम इसके लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं दोनों के लिए, ठीक है. म्यूचुअलिज्म के लिए क्या होगा, दोनों के लिए पॉजिटिव साइड. ए जो है बी को फायदा पहुंचा रहा है और बी जो है ए को फायदा पहुंचा रहा है. एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन. इन लाइकेन एल्गी बेनिफिटेड टू फंगी एंड फंगी बेनिफिटेड टू एल्गी. वाउ एल्गी टेक द एल्गी एबल टू फॉर्म द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट
and take the advantage of water from the fungi, and fungi are actually saprophyte, so totally depend on the algae. So both algae and fungi in a lichen, both algae and fungi in a lichen interact to each others, but they actually benefit to each others. ठीक है, मैं डिटेल भी समझाऊंगा, म्यूचुअलिज्म को डिटेल भी समझाऊंगा, पहले हल्का हल्का नॉलेज आप ले लीजिए। कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होता है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, सपोज दैट ए रह रहा हो बी रह रहा हो, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दोनों के लिए मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लायन टाइगर अगर एक साथ रह रहे हो तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दोनों एक दूसरे की स्पीसीज के लिए खतरा है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट, प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। दो स्पीसीज ए रह रहा हो और बी रह रहा हो तो एक को सीधे सीधे फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पैरासाइट्स है, ठीक है, अभी पैरासाइट का कॉन्सेप्ट अलग है। प्रीडेशन में जैसे मान लो कि हर्बीवर्स कोई घास खा रही है तो हर्बीवर्स को फायदा हो रहा है, घास को क्या फायदा हो रहा है, घंटा कुछ नहीं, तो घास को नुकसान हो रहा है, तो बी जो हो जाएगा वहाँ पे ग्रास हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हर्बीवर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पैरासिटिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ प्रीडेशन से मिल रहा है। पैरासाइट्स जो है टोटली जो है डिपेंडेंट होते हैं, उसमें पैरासाइट्स को पूरा पूरा एडवांटेज मिलता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। जैसे आपके ऊपर मॉस्कीटो जो है बाइट कर रहा है तो मॉस्कीटो को फायदा हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है मॉस्कीटो से, आपको और नहीं तो नुकसान हो रहा है, बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज फैल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लेंगे कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। इसके बाद आते हैं कॉमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉमेंसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है दूसरे को न तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं बफेलो अगर खेत में चर रही है, बफेलो कभी कभी गाय भैंस ग्रास लैंड में चर रही होती है तो उसके पीछे एक एक जो है इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट ने एक बर्ड होता है जिसको बोलते हैं एग्रेट। क्या बोलते हैं, एग्रेट। ठीक है, लिख दे रहे हैं एग्रेट। एग्रेट इस बफेलो के पीछे पीछे इसलिए चलता है कि बफेलो के पैर से जो घास दबती है उससे जो इंसेक्ट निकलते हैं उसको एग्रेट खाता रहता है, तो इससे एग्रेट को तो फ़ायदा पहुंचता है, बफेलो को न तो एग्रेट से कोई फ़ायदा है ना ही नुकसान है। यानी हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए साइन यूज करेंगे, एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव, जीरो। ठीक है, चलो आते हैं एमेंसेलिज्म, लास्ट टॉपिक है एमेंसेलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक को नुकसान होता है दूसरे को न तो फायदा होता है न तो नुकसान होता है। ऐसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें एक को नुकसान हो दूसरे को न तो फायदा हो न ही नुकसान हो। इन सच अ मैनर टू इंडिविजुअल्स लाइव टुगेदर इन सच अ मैनर दैट वन गेट बेनिफिटेड while other neither get benefited, one get harm while other neither get harm nor benefited। एक को न तो फ़ायदा हो रहा है, सपोज दैट बी को न तो फ़ायदा हो रहा है न ही नुकसान हो रहा है, बट ए को जो है सिर्फ नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कोई मॉल्ट्स जो है, कोई पेनिसिलियम का मॉल्ट्स जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी में ग्रो कर गया तो बैक्टीरिया की कॉलोनी को तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन इससे मॉल्ट्स को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना तो फ़ायदा होता है मॉल्ट्स को ना ही नुकसान होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल। आई होप सिर्फ इसी से ही समझ जाएंगे कि आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी आते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में भी वही हाल है, दोनों को नुकसान होगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, ठीक है, प्रीडेशन में इसमें आ जाते हैं। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। कॉमेंसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है दूसरे को न तो फ़ायदा होता है न ही नुकसान होता है। और एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को न तो फ़ायदा होता है न ही नुकसान होता है। इसका मतलब आपको दो साइन मिल गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक ज़ीरो। पॉजिटिव साइन मीन्स बेनिफिटेड, बेनिफिशियल, ठीक है। निगेटिव मीन्स हार्मफुल, और इसका मतलब क्या होगा, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्मफुल। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज करके आप बहुत कम समय में एग्ज़ाम में जाते जाते सबका आप डिफिनीशन रट लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इसमें से एक बार और देख लेते हैं।
इसमें क्या दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, इसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान, इसमें भी एक को फ़ायदा एक को नुकसान, इसमें एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को न तो फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो। इसमें क्या है, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को न तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे नोट भी मैंने लिखा हुआ है, नोट द पॉजिटिव साइन मीन्स बेनिफिशियल एंड नेगेटिव साइन मीन्स हार्मफुल। वन मोर साइन यू शुड एडेड, द जीरो मीन्स नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या लाइव क्लास में इसके बारे में पूछेंगे। अब एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं म्यूचुअलिज्म। सबसे पहले आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है कि टुगेदर व्हेन द टू सिस्टम्स लाइव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड टू ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। डेफिनेशन मिल गया आपको, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। आप इसके अलावा कोई और डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, आराम से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है फिग एंड वेस्प। फिग और वेस्प, फिग का फ्रूट आप देखे होंगे गूलर बोलते हैं। इसमें फिग और वेस्प का रिश्ता बहुत पुराना होता है। इसमें फिग और वेस्प दोनों को बेनिफिट मिलता है। आप एक कॉमन सा गूलर का प्लांट्स ले लेंगे और प्लांट्स में फ्रूट ले लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे। और ये इंसेक्ट कैसे एडवांटेज देते हैं ये भी समझ लो कि ये इंसेक्ट एक्चुअली क्या करते हैं कि जब फिग का फ्रूट डेवलप होता है ना तो उसी समय उसमें एग ले कर देते हैं, उसमें छोटे छोटे एग ले कर देते हैं। और जब एग ले कर देंगे तो ये जब फ्रूट बन जाएगा तो एग से इंसेक्ट आ जाएंगे, इंसेक्ट डेवलप हो जाएंगे और वो इंसेक्ट उसी में रहते हैं और घूम घूम के उसमें घूम घूम के, क्योंकि जो फ्रूट्स होता है ना, आप जो है 11th में पढ़े होंगे हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि फ्रूट जो है फ्लावर जो है फ्रूट के अंदर होता है, इसी फ्रूट के अंदर। ये मैंने ओपन कर दिया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है, ये सब सारे फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर फ्रूट के अंदर होता है तो इसमें पॉलिनेशन कौन करने जाएगा? अगर पॉलिनेशन होगा भी तो फ्रूट के अंदर कोई इंसेक्ट घुसेगा तभी ना फ्रूट पॉलिनेशन करेगा। तो किसको क्या पता है इसके अंदर है क्या? तो होता क्या है कि फिग, ये ऊपर दिख रहा है फिग और ये अंदर दिख रहा है, फिग इसी में एग लेकर देती है और उसके बाद जब इससे इंसेक्ट बनता है तो ये इसी में घूम घूम के पॉलिनेशन करती रहती है और साथ में उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है। ठीक है, मैंने बताया था इसमें एक मेल फ्लावर होते हैं, एक फीमेल फ्लावर होते हैं, एक गाल फ्लावर होते हैं। गाल फ्लावर सिर्फ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करते हैं, किसको? ये स्पेशली वेस्प के लिए ही बने होते हैं। ये जितना भी दिख रहा है ये सब वेस्प है और फिग मतलब ये गूलर का फ्रूट। ठीक है, तो ये फिग से एडवांटेज क्या लेता है इंसेक्ट यानी वेस्प, ये फिग से एडवांटेज वेस्प लेता है कि इस ये जो है इसको नेक्चर या नरिशमेंट मिल जाता है। बट फिग को वेस्प से क्या एडवांटेज मिलता है? फिग को वेस्प से यही एडवांटेज मिलता है कि उसका पॉलिनेशन हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल करना है। एज वी नो दैट द फिग फ्लावर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, सो इट इज़ वेरी tough to pollinate by the other insects. So the wasp lay egg before the development of fruits. Then the fruits as well as the flower develop. Then the insects pollinate inside the fruits to the different male and female flowers and helpful in fertilization and other and make the pollination process easier, so that the fig get benefited from wasp because of having the pollination, while the wasp get nourishment, while the wasp easily get nourished from the wasp from the fig fruits, so that both benefited to each others. And this is the better example to explain the म्यूचुअलिज्म। आई होप इसको आप कर लेंगे, कम से कम हाफ पेज में तो करने ही करने हैं। ठीक है, डायग्राम आप बनाए चाहे मत बनाए, लेकिन आपको एक लेबल डायग्राम ऐसे तो बना ही लेना है जिसमें आपको फिग दिखा देना और वेस्प दिखा देना है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आपका क्या है? लाइकेन, जिसमें एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, कौन सा टाइप का बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? एल्गी फंगी, सॉरी, इसको एल्गी की जगह पे क्या कर देंगे? फंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये फंगी कर देंगे। फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया साथ साथ रहते हैं। और इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? एज वी नो दैट एल्गी लाइक साइनोबैक्टीरिया able to perform the photosynthesis,
while fungi do not. So how do fungi get nourished? Fungi get nourished from the algae, and algae get water from the fungi because fungi through the help of mycelium absorb the water from the soil. So it is very easy to intake the water by the fungi, while the algae get water from the fungi, so that complete the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर की जरूरत पड़ती है उसका रिक्वायरमेंट एल्गी पूरी तरह से फंगी से करता है, लेकिन फंगी को जो फूड होता है वो फूड पूरी तरह से एल्गी से लेता है। और ये जो एसोसिएशन बनता है इसको बोलते हैं लाइकेन। इसको भी आप हाफ पेज में एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग यही रहेगा, हेडिंग रहेगा लाइकेन इन ब्रैकेट फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया इन ब्रैकेट ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हाफ पेज में इसको एक्सप्लेन करना है। माइकोरहाइजा विथ हायर प्लांट्स, माइकोरहाइजा जो जीनस ग्लोमस से बिलोंग करता है, ये आपको चैप्टर नंबर MUS चैप्टर नंबर 10 में इसको बताया गया था बायो फर्टिलाइजर्स में। माइकोरहाइजा एसोसिएट विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स सो दैट द हायर प्लांट्स गेट बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द माइकोरहाइजा वाइल माइकोरहाइजा टेक एडवांटेज फ्रॉम हायर प्लांट्स। माइकोरहाइजा इससे नरिश लेता है हायर प्लांट से, और हायर प्लांट्स माइकोरहाइजा से क्या लेता है, ये हायर प्लांट से माइकोरहाइजा हायर प्लांट जो है माइकोरहाइजा से वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस मिनरल एब्जॉर्प्शन प्लस माइकोरहाइजा हायर प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, रूट बॉर्न पैथोजन से उसको बचाता है। ठीक है, रूट बॉर्न पैथोजन को चेक करता है। तो ये माइकोरहाइजल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनस ग्लोमस से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 10 चैप्टर में लिखा है दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, लाइकेन का हाफ पेज, ऊपर फिग और वेस्प का ये पूरा हाफ पेज, और प्लस माइकोरहाइजा विथ हायर प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स इंसेक्ट। देखो ये लंबे समय से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई भी जो जिसमें एंटेमोफिली होता है। एंटेमोफिली मीन्स क्या होता है, एंटेमोफिली मीन्स होता है the flower that adopted for the insect pollination, that is known as the entomophily. So flower that adopted for insect pollination required insect. What are the advantages get by insect from the flower? Actually insect get the nourishment from the flower with the help of their nectar. Actually nectar is the sweet cell sap present in the flower that provide the nourishment to the insects, and insects actually unfortunately and randomly perform the process of pollinations. How insect जब फ्लावर्स पे बैठता है तो नेक्चर लेने के लिए बैठता है, बट होता क्या है कि वो फ्लावर्स ऑलरेडी अट्रैक्टिव होते हैं, इस वजह से तो इंसेक्ट आता है, बट जब उससे नेक्चर ले रहा होता है तो उसके पैर में क्या चिपक जाता है, उसके पैर में चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जब ये पॉलन ग्रेन्स उसके पैर में चिपक जाएंगे और ये दूसरे किसी फ्लावर पे जाकर बैठेगा तो इस पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देगा उस फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली, और इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा देते हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा देते हैं। तो ये बेनिफिट क्या हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है म्यूचुअलिज्म का एक बेटर एग्जाम्पल। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का एक बेटर एग्जाम्पल, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। एज वी नो दैट मैनी इंसेक्ट डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फ्लावर। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक फ्लावर से ही डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर ये फ्लावर ना रहे, ठीक है, तो ये इंसेक्ट जो है डेथ कर जाएंगे। और कभी कभी फ्लावर भी स्पेसिफिक इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं, यानी वो फ्लावर वो इंसेक्ट जो है उस एरिया में ना रहे तो वो फ्लावर सूख जाएगा लेकिन पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, so how do mutualism help beneficial in the flowering plants who have which has the criteria which has the ability for entomophily? तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। as we know that the insect get benefited from flowers by the nectars, and flowers get benefited from the insect in order to complete their process of the pollination. ठीक है, आई होप इसको आप कर लेंगे अपने लैंग्वेज में, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये अगर साथ साथ इवोल्यूशन, ये साथ साथ जो है अगर इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हो लंबे समय से, जैसे आज से तो थोड़ी ना 1-2 दिन की बात होगी जिसमें पॉलिनेटर्स जो है इंसेक्ट और फ्लावर एक साथ रह रहे हो, या फिर यहाँ पे फिग और वेस्प एक साथ रह रहे हो। ठीक है, तो ये फिनोमिनन क्या होता है, फिनोमिनन जब एक साथ रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिज्म शो करते हैं तो उसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। ये एग्जाम में कभी कभी आता है, को इवोल्यूशन। ठीक है,
Co-evolution is the process in which two organisms live together and benefited to each others. The phenomenon is known as co-evolution. The mutual behavior between two organisms show the co-evolution. ठीक है, इसको कभी कभी को एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, को एग्जिस्टेंस। और एक कभी कभी एक टर्म आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन यानी कि अगर ये पूरी तरह से ऑब्लिगेट डिपेंडेंट है, यानी इसके बिना ये नहीं रह सकता, इसके बिना ये नहीं रह सकता, तो एक अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक होता है कोआला बियर, एक होता है कोआला बियर। ये जो टैडी बियर तुम लोग खरीद के लाते हो, ये एनिमल का रेप्लिका है, एनिमल की बिल्कुल कार्बन कॉपी होती है। तो कोआला बियर एक्चुअली क्या खाता है? बैम्बू शूट्स खाता है। ठीक है, कोआला बियर का जो फेवरेट फूड है वो क्या है? बैम्बू शूट्स। अगर बैम्बू शूट्स उस एरिया से ख़त्म हो जाए या बैम्बू ख़त्म हो जाए तो कोआला बियर मर जाएगा, लेकिन दूसरा कुछ नहीं खाएगा। तो ये दोनों का क्या है? ये म्यूचुअलिज्म तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बम्बू को इस कोआला बियर से कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन ये कोआला बियर बम्बू के बिना नहीं जी सकता। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअलिज्म की मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे इंसेक्ट जो है स्पेसिफिक अगर होगा तो सीधी सीधी फ्लावर भी कभी कभी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे यहाँ पे जो फिग की वैरायटी है, ये सभी तरह के वेस्प के साथ जो है इंटरेक्शन नहीं शो करती है, और वेस्प को भी मालूम है कि मैं सभी तरह के फ्लावर में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसको बोलेंगे हम को-इवोल्यूशन। और एग्जाम में आता है व्हेन द म्यूचुअल बिहेवियर शो by the two or different kinds of living organisms belong to similar kinds of food habitats or similar kinds of system, then they show the co-evolution. So the condition for co-evolution is the mutual relationship or mutual attraction between them. ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का जो कंडीशन है, ये पॉलिनेशन और इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन और फ्लावर के पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स जो फ्लावर से पॉलिनेशन करता है, ये कंडीशन होता है। फ्लावर से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, अगर अट्रैक्ट ना हो तो इंसेक्ट कभी भी इसके पास नहीं आएगा। लेकिन कुछ केस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक फिनोमिनन ऑफ गारंटीड पॉलिनेशन बाय मेडिटेरेनियन ऑर्किड। एक्चुअली एक ऑर्किड होता है मेडिटेरेनियन ऑर्किड, उसकी खास बात होती है कि उसकी फ्लावर की स्पेसिफिक बनावट। ठीक है, ये फ्लावर ऐसे दिखने में लगता है, ये जितने भी दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि जैसे ढेर सारे इंसेक्ट या ढेर सारा कोई बटरफ्लाई आकर के किसी प्लांट के ऊपर बैठा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी इंसेक्ट दिख रहे हैं वो ना तो बटरफ्लाई है और ना ही कोई इंसेक्ट है। ये एक्चुअल में है क्या? एक तरह का फ्लावर है, और ये फ्लावर किसका है? मेडिटेरेनियन ऑर्किड का फ्लावर है। ठीक है, ये जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड होता है ना, वो दिखने में बिल्कुल भी फ्लावर दिखता ही नहीं, वो लगता है क्या? लगता है फीमेल मोथ की तरह से लगता है। ठीक है, फीमेल मोथ की तरह से या फीमेल बीज की तरह से लगता है। तो मेल बीज जो है वो क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली मेल बी जब इसको देखता है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसके साथ जो है स्यूडो कॉपुलेशन शो करता है, यानी इसके साथ अट्रैक्शन है, इसके ऊपर बैठता है तो क्या होता है? इसका पॉलन ग्रेन चिपका लेता है, और फिर ये दूसरे किसी फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो उस पर इसका पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर देगा। सो यहाँ पे इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, एग्जाम में ये आता है। तो यहाँ पे स्यूडो कॉपुलेशन और मेडिटेरेनियन फ्लावर का जो फिनोमिनन है, इसी वजह से मेडिटेरेनियन फ्लावर्स जो है वो अपने आप में उसका मॉर्फोलॉजी ही गारंटी मानी जाती है सेल्फ पॉलिनेशन का। फ्लावर ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्किड इज गारंटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी। यानी कि जो ऑर्किड का फ्लावर है ना, मेडिटेरेनियन, सभी ऑर्किड का नहीं, मेडिटेरेनियन ऑर्किड का जो फ्लावर है उसकी मॉर्फोलॉजी इंसेक्ट पॉलिनेशन की गारंटी मानी जाती है। बिकॉज फ्लावर लुक लाइक सिमिलर एज लाइक द फीमेल बीज, so that the male bees attract automatically and perform the process of pollination. मेल बीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। दिस काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन बाय फॉल्स फीलिंग ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड स्यूडो कॉपुलेशन। तो ये स्यूडो कॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका पीडीएफ पाएंगे तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या फिर इसी को आप छाप देंगे या इसी को लिख देंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे अपने लैंग्वेज में। एज वी नो दैट द फ्लावर ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स आर लुक लाइक द फीमेल बीज, सो अनफॉर्चुनेटली द मेल बीज randomly or automatically attract toward the
female flower and perform the process of pollination. So this kinds of pollination by the false attraction is known as pseudo population. अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देना सभी टर्म्स, एक्सप्लेन ईच टर्म्स दैट हाउ डू द अबव इंटरेक्शन बेनिफिटेड टू ईच अदर्स, एक दूसरे को कैसे बेनिफिटेड पहुंचाते हैं। मेडिटेरेनियन ऑर्किड और वेस्ट मेडिटेरेनियन ऑर्किड और मेल बीज, मेडिटेरेनियन ऑर्किड और मेल बीज एक दूसरे को कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, साथ में फिग वेस्प कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं वो एक दूसरे को फ्लावर्स को साथ कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं। लाइकेन और लाइकेन में जो एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया और जो फंगी एक दूसरे को कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, सबके बारे में आप हाफ पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। सच फिनोमिनन इन विच टू और मोर देन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग लाइव टुगेदर एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर्स कॉल्ड कोइवोल्यूशन, मैंने ऊपर बता दिया था। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं कंपटीशन समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको पूरी तरह से थॉरोली आप रिवाइज कर लेंगे और ये पूरा पॉइंट लिख डालेंगे, सारा पॉइंट एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से मैं आपके लिए डिफरेंट डायग्राम लेके आया और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कंपटीशंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसको कैसे हम कॉपी में लिखेंगे और उसके लिए इम्पोर्टेंट की हेडिंग्स क्या होगा और उसके लिए की एडवांटेज और एग्जाम्पल क्या होंगे। थैंक यू।